जी सिनेरियो बता। Okay, ma'am. Ma'am, it is a 18-year-old girl presented to emergency department with हम्म। sudden brought up by her parents with sudden onset of severe abdominal pain, uh, located in the right iliac fossa. On her examination, her blood pressure is 110/70. Pulse. बेटा आपकी आवाज कुछ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एक तो हल्की भी है और थोड़ा थोड़ा सा मतलब शेकी सी आवाज भी है। मे बी। ओके मैम। मैं रिपीट करती हूँ। अब ठीक आ है, रही है आवाज में? यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है, बाकी आप जरा बताइए। ठीक जी है। मैम। ऑन राइट में। ठीक है। ओके मैम, ऑन एग्जामिनेशन ब्लड प्रेशर इज फॉर 110/70। हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज और आवर्स? मैम सडन पेन है 1 आवर ड्यूरेशन से। जस्ट फॉर 1 आवर? जस्ट फॉर 1 आवर। ओके। हम्म। On examination, her blood pressure is 110/70. हम्म। Her pulse is 110 beats per minute. Her temperature हम्म। is 37.8. On abdominal examination, there is a tenderness in the lower abdomen and a हम्म। guarding, and there is a mass felt in the right side, the right iliac fossa, about 10 week size mass. हम्म। 10 वीक साइज। आपको एब्डोमिनली पता चल गया उसका? Uh, हम्म। आप ये तो कह सकती हैं कि 10 अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 वीक साइज अगर हम जो यूट्रस के हिसाब से हम मेजर करते हैं वो जी मैम। सेंट्रल मैसेज के लिए यूज करते हैं। और अमूमन 10 वीक्स का जो यूट्रस साइज है, जी जो मैम। साइज है वो अभी पेल्विस के अंदर ही होता है, जी जी मैम। नॉट फेल्ट सुप्राप्यूबिकली अ, यूजुअली। मैम मैथ फेल्ट हो रहा है एक राइट साइड पे ना। ठीक है, राइट साइड पे जो है वो सेंट्रल तो नहीं होगा ना। जी मैम। इसलिए उसको आप फिर अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर उसके हिसाब से आप कहेंगे। ज़ाहिर है आप उस तरह से मेजर नहीं कर रहे, अप्रोक्सीमेशन ही होती है। और जी मैम। अप्रोक्सीमेशन एक डेफिनेट फिगर में आप नहीं बताते हैं, आप उसकी रेंज बताते हैं, जैसे 8 to 10 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर, इस तरह से करके। ओके मैम, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर कर लें। ओके, 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म। ठीक। ये आपका केस है टोटल। जी मैम। ओके, हाउ यू विल evaluate her further? ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल introduce myself to the patient and her tenants, and I will take the brief history from the patient about the onset of pain, duration, its character, and हम्म। its radiation, any aggravating or relieving factor, and हम्म। any associated symptoms such as nausea, vomiting, fever, हम्म। uh, हम्म। any history of I will ask about her last menstrual period and the regularity of her cycles, history of हम्म। menorrhagia or feeling of mass in the abdomen, हम्म। any history of severe dysmenorrhea and chronic backache, and any history of lower abdominal pain, fever, foul smelling vaginal discharge, and I will ask about the history of chronic cough, weight loss, night sweats, or personal history of TB or contacts with any person in the family with the TB, and then I will ask the patient um, about the history of fever and pain that's radiating from epigastric area to right iliac fossa, history of anorexia, tachycardia, any history of history of weight loss, early satiety, any change in the urinary bowel habits. Then I will ask about her gynecological history, her last menstrual period, and her personal history of any comorbidity, any family history of any comorbidity or any history of cancer in the family, and ask about her surgical history, and I will also rule out her drug allergies. हम्म। Uh, okay. आगे चले। Okay. Should I proceed to in examination? हम्म। Uh, First of all, I will do her general physical examination, and
आपकी as आवाज का given. वॉल्यूम बीच में ऑफ एंड ऑन कम हो जाता है। ओके मैम, मैं करती हूँ। अब ठीक आ रही मैम आवाज? जी जी, अब ठीक आ रही है। Ma'am, as given to me in the scenario, her blood pressure is 110 by 70, her pulse is 110 beats per minute. I will also check her respiratory rate, and I will look for pillar jaundice and her thyroid, and auscultate her chest and cardiovascular examination. Then I will proceed to abdominal examination. As given to me, the findings that there is a tenderness in the lower abdomen, and there is a guarding. Uh, I will confirm my findings. Then should I proceed to investigation? ओके। और Regarding investigation, first of all, I want to check her general health of the patient. I will do her complete blood count to see her hemoglobin gram per deciliter, and her total leukocyte to rule out any infection, and her platelet count, and also want to check her urine complete examination for pus cells and sugar, and also a viral serology. हम्म Uh, Regarding specific investigation, uh, I will do her want to do her urine pregnancy test to rule out pregnancy, and also uh, uh, want to do her pelvic ultrasound to see the uterus, any uterine uterus size, any pathology, any uterine pathology, or any adnexal mass, or yeah, any free fluid in the abdominal cavity. And जी, uh, हो गया आपका? जी मैम। सो बाय नाउ आपके तकरीबन 6-7 मिनट्स लगे इस पूरे में। जी और मैम। कुछ आपने काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट की, रेपिटेशन बहुत थी। और बाकी यह है कि उसमें जस्टिफिकेट जाहिर है, जो आपके पास पेशेंट आया है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें रूल आउट भी करनी होती हैं और उसके एक डायग्नोसिस जी। पे पहुंचना होता है। बट द जी मैम। सेंसिटिव थिंग्स शुड बी रूल्ड आउट। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि जी मैम। इसमें हिस्ट्री में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा या क्या चीज़ें इन्होंने नहीं पूछी। हमारे जो बाकी ऑडियंस है उनसे मेरा ये सवाल है, इफ दे आर listening to all of this scenario, definitely everyone online is listening to the case. मैडम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की डिटेल्स नहीं पूछी टू रूल हम्म आउट प्रेगनेंसी। सेकंड वन, हम्म। ट्यूबरक्लोसिस को एलेबरेट नहीं किया। नहीं, थर्ड वन जो मैस। एलएमपी जो है वो इन्होंने पूछा तो है, एलएमपी के बारे में बल्कि 2-3 दफा पूछे। ओके ओके मैम। तो व्हाट एल्स यू नीड टू? मैम ओके ठीक जो है। मैस की डिस्क्रिप्शन जो थी उसकी के हम्म पहले, क्योंकि ये सिस्ट एकदम नहीं बनी होगी, इफ इट इज, तो इसको डेफिनेटली। ऑफ एंड ऑन इस पेशेंट को पेन रहती होगी। हो सकता है इन्होंने कोई हम्म स्कैन भी कराया हो, हम्म प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन सो फार एंड प्रीवियस हम्म इन्वेस्टिगेशन सो फार। ये पॉइंट एक हम्म। मिसिंग था। हाँ और ठीक क्योंकि है, वाइटल्स। आई एग्री, ये चीजें मिसिंग थी। जी क्योंकि मैम। अगर मैस उसका है, अब फील हो रहा है, एब्डोमिनली भी फील हो रहा है, तो तो ये बड़ा है। जी। उसमें उसमें बड़ा मैस होता है, तो जी। वो एकदम से नहीं बनता। ये सही बात है। और और उसमें मैम। प्रीवियस हिस्ट्री है वो सारी पूछनी बहुत जरूरी होती है। जी मैम। प्रीवियस कोई उसको ऐसा, तो इस वक्त तो सडन पेन है होगी, हो सकता है क्रॉनिक पेन को वो इग्नोर कर जाती हो, जी मैम। तो और मैम इसलिए वो फैमिली सारी हिस्ट्री भी, डिटेल पूछना जरूरी है। हाँ। आई थिंक फैमिली हिस्ट्री भी पूछ लेनी चाहिए रिगार्डिंग एनी ओवेरियन पैथोलॉजी एंड इस तरह मेरा से। ख्याल है इन्होंने मिलिग्नेंसी वगैरह की तो पूछी है, और उसकी क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस की भी पूछी है। तो जी। ये और मैम इतना सा तो मुझे पता हिस्ट्री ऑफ है। अपेंडेक्टमी, हो सकता है अपेंडिक्स पहले निकली हो राइट साइड पे। हाँ, वो वो सर्जिकल हिस्ट्री ने सर्जिकल पूछी है। हिस्ट्री तो इन्होंने पूछी है, लेकिन सर्जिकल जी। हिस्ट्री में स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं एंड किया कि व्हाट स्कार मार्क स्पेसिफिकली ऑन राइट सर्जिकल। साइड लाइक इस हाँ, तरह से। वो भी और देखना मैम, जरूरी होता है। और मैम हाँ वाइटल्स ऑलरेडी मेंशन्ड थे, तो उस पे भी हाँ टाइम बच सकता था इनका, ये कि आई विल चलो, रिकन्फर्म वाइटल्स यूं कह के हाँ, तो टाइम बच जाता था। tachycardia है which definitely may be due to pain and due to the underlying pathology also। तो जी मैम। ये है जो कि उसमें अपेरेंटली जो चीजें। यस मैम। जी मारिया, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब क्या है?
मैम माय डिफरेंशियल जो है मैं अभी क्या ये कोई रियल केस था या आपने खुद से सिनेरियो बनाया है? नहीं मैम, ये मैंने खुद से बनाया है, ओके, रियल सिनेरियो ठीक है। नहीं है। मतलब ज्यादातर तो केसेस इसी तरह के सिनेरियोज के साथ आती हैं। जी तो मैम। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें आपका क्या बना? मैम इसमें जो है ओवेरियन एक्सीडेंट कोई हो सकता है, टॉर्जियन या सिस्ट रप्चर और डिजनरेशन ऑफ फाइब्राइड और और डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ओके। मैम ओवेरियन देखो, एक्सीडेंट या जो फिर जो जो आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री लेने जी का मैम। मकसद ही ये होता है कि आप किसी डायग्नोसिस पे पहुंचे। जी तो मैम। उससे उससे हिस्ट्री के हिसाब से जो आपने सारा कुछ पूछा, कोई जी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं है सो फार जो आपने हमें बताया। जी एलएमपी का भी आपने पूछ लिया। सपोज हम कहते हैं कि ये एलएमपी है, इसका तकरीबन 2 वीक्स बैक, 2 वीक्स जी नहीं 3 वीक्स बैक। ठीक है, जी शी मैम। इज इन ल्यूटियल फेज नाउ। वो एलएमपी के हिसाब से जो है वो 3 वीक्स बैक हमने, ज़ाहिर पेशेंट को बाद दफा एग्जैक्टली डेट नहीं पता होती, तो जी वो एलएमपी का हमने बता दिया। बाकी इसको इससे पहले कभी कभार डल एक होती है, बट यूरिनरी या बावल सिम्टम्स कुछ नहीं है। डल एक है जो कि खुद ही सही भी हो जाती है। मतलब it persists for maybe 3-4 hours and then it settles on its own after taking some analgesics like Panadol। ये उसकी जी जो है वो हिस्ट्री उसकी है। तो और इसमें कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, फैमिली में कोई सिग्निफिकेंट ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई फीवर की या इस तरह से कोई क्रॉनिक कफ, वेट लॉस वगैरह की कुछ हिस्ट्री नहीं है। She जी doesn't give any specific severe dysmenorrhea. However, she complains of mild pain during the first and the second day of the cycle, which again settles। तो इस हिस्ट्री की बैकग्राउंड में और जो आप ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पे तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रोविजनल डायग्नोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिस्ट्री के बेस पे और एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो आपने बताई कि यूनिलैटरल मैस है इन द राइट एडनेक्सा विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 5 into 6 centimeter, विच इज टेंडेड टू टच, गार्डिंग रिजिडिटी पॉजिटिव है जैसा कि आपने हमें बताया। जी और मैडम। ये इसका है। अदरवाइज जो है वो इसमें और कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं है, एनीमिया नहीं है और कुछ नहीं है। सो जी विद मैम। दिस हिस्ट्री एंड द एग्जामिनेशन, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? एक तो आपने मुझे बता दिया कि सम ओवेरियन टॉर्शन हो गई, डिजेनरेशन ऑफ द फाइब्रोइड हो गई, और और मैम गायनेकोलॉजिकल में मैम और सम ट्यूबोवेरियन मैस हो सकता है कोई। ओके, ठीक है। और एंड मैम नॉन गायनेकोलॉजिकल में अपेंडिसाइटिस को हम रूल करेंगे, हम्म डायबिटिकुलाइटिस, एनी पाइलोनेफ्राइटिस और एनी यूरेटाइट मैथ्स के स्टोन। साथ मैथ्स आपको फील हो रहा है, सो जी यू मैम। विल नॉट टेल अस द whole bookish list of the different of the pain in the right eyelid fossa. Rather, जी you मैम। will limit your differential diagnosis pertaining to the a particular situation of this patient, क्योंकि आपको मैस फील हो रहा है इसमें जो यूनिलेटरल मैस है इन द राइट एडनेक्सा। तो अगर जी तो मैम। राइट एडनेक्सा से रिलेटेड आप नॉन गायनेकोलॉजिकल रीजंस बता सकती हैं तो दैट विल फिट इनटू द पिक्चर, लेकिन अदरवाइज जनरलाइज जो है वो उसमें मिसफिट हो जाएंगी। हम्म तो तो मैथ अपेंडिसाइटिस से भी हो ज्यादा सकता है। हम इसको क्या कह सकते हैं? पेंडिकुलर जी मैस। मैडम अपेंडिकुलर लंप कह सकते हैं इसमें। ओके, वही मैं पेंडिकुलर मैस की बात कर रही हूँ कि वो एक जी मैम। डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? रप्चर्ड एक्टोपिक भी हो सकती है। तो मैम थ्री काफी वीक्स बड़ा बैक मैथ इसका है, एलएमपी टॉपिक था। इतनी बड़ी। 3 वीक्स बैक इसका एलएमपी था। अगरचे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें इतना बड़ा मैस नहीं बनता। बिकॉज इफ इट इन अ पेशेंट विद अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें कभी आगे पीछे नहीं होते, उसमें अगर हम ये सोचें भी कि 2 वीक्स बैक इसकी अगर ओवुलेशन हुई होगी तो अब हो सकता है ये अभी उस इम्प्लांटेशन के चक्कर में हो, उस इम्प्लांटेशन वाले फेस में हो।
जो कि हो जी सकता है ट्यूबल एक्टोपिक हो या ओवेरियन हो। तो वो इतना बड़ा मैस बना के रप्चर नहीं हो सकता। तो उसको भी आपने उस तरह से सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर होगा तो ये फिर क्रॉनिक एक्टोपिक होगा। क्रॉनिक एक्टोपिक में उसको आप बहुत, अगर हम इसको कहेंगे लास्ट इन द लिस्ट में अगर रखूं तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इसको एलएमपी हुए, अब ये एलएमपी है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई क्रॉनिक एक्टोपिक वाला केस हो सकता है, तो इसमें एलएमपी की डिटेल फिर पूछना जरूरी है कि ये नॉर्मल साइकिल की तरह से थे या कम थे, क्योंकि बाज दफा मिस्ड पीरियड की कोई हिस्ट्री नहीं होती ऐसे पेशेंट्स में, और द पेशेंट कैन हैव सम विथड्रॉल ब्लीडिंग डिस्पाइट हैविंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, खास तौर पे क्रॉनिक एक्टोपिक में। तो वो वाली डिटेल फिर पूछना जरूरी है, क्योंकि बाज दफा क्रॉनिक एक्टोपिक भी बड़े एटिपिकल तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसमें कोई मिस्ड पीरियड नहीं है और उसमें यही विड्रॉल ब्लीडिंग वाला फेज होता है। सो ऐसी सूरत में जब आप सोच रहे हो तो फिर एलएमपी की डिटेल सारी पूछनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, और ओके, ये आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अपेरेंटली जो है वो यूरिन भी ठीक है, वायरल सीरोलॉजी भी नेगेटिव है, यूपीटी भी नेगेटिव है, और बाकी उस पे हीमोग्लोबिन इज हाउएवर 9.5 है, और प्लेटलेट्स आर नॉर्मल। जस्ट टू मेक इट सिंपल, अल्ट्रासाउंड पे देयर इज राइट साइडेड adnexal mass of 7 into 8 सेंटीमीटर, जिसमें उसकी हाइपोएकोजेनिक है, और उसमें उसका जो है वो उसके जो डॉपलर फ्लो स्टडीज हैं दैट इज अ बिट, बल्कि डॉपलर फ्लो स्टडीज आर नॉर्मल, उसमें ऐसा कुछ और मसला नहीं है, बट दिस इज एनलार्ज एंड द ओवरी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। उसमें हम कह सकते हैं कि ये ओवेरियन मैस ही है। अलहदा से सिस्ट को डिफ्रेंशिएट करना उसमें अल्ट्रासाउंड पे मुश्किल है। नाउ व्हाट विल बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जी मारिया। Million, कोई और इनके साथ अगर हेल्प करना चाहे या इनको ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता। Ma'am, it could be follicular cyst, corpus luteal cyst, हम्म and ma'am, any benign 7 into 8 सेंटीमीटर की, 7 into 8 सेंटीमीटर की नहीं मैम उसका follicular साइज या luteal मैडम cyst मैडम हम कैन कहेंगे। बी द कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो सकती है ना, ठीक है। uh, कॉम्प्लेक्स होगी ना। मैडम हम्म जैसे डर्मोइड होते हैं। अदरवाइज इसमें कोई सेप्टास या कोई सॉलिड एरियाज विजिबल नहीं है ऑन अल्ट्रासाउंड। डॉपलर फ्लो इज नॉर्मल। मैम इट मींस के बिनाइन फीचर्स हैं। pelvic abscess भी हो सकता है, हम्म abscess भी हो सकता है मैम। ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस भी हो सकता है, एब्सेस अगर हो तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स और हों। फीवर होगा। सेप्टास एब्सेस हो गए। बगैर सिम्टम्स के अमूमन नहीं होता। तो क्या पॉसिबिलिटी है? अल्ट्रासाउंड वालों ने क्वेरी किया हुआ है टॉर्शन ऑफ सिस्ट को भी और उसमें हेमराजिक सिस्ट को भी। ये दो चीजें हैं जिनको उन्होंने डिफरेंशियल में डाला हुआ है इन अल्ट्रासाउंड। एनी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस तो नहीं, नो, एंडोमेट्रायमा तो नहीं? नॉट नेसेसरी, मेंशन नहीं किया हुआ उस पे, अल्ट्रासाउंड पे। So what will be your line of management now in view of this ultrasound report? मैम तो हम्म मैम बताऊँ मैं? जी बता दीजिए। Okay. According to history examination and investigation finding, हम्म I will explain the diagnosis to the patient and their family members. That is most probably it is a benign cyst, that accident, that is a torsion of the cyst. So will need immediately need it's an emergency. So will need immediate surgical exploration, and I will consult the patient and attendants that
if we delay the surgery, there is a chances of necrosis of adnexa and her consequent fertility implications. And so I will take a written form consent regarding if there's इसके एक मिनट बेटा सुन रुकिए। जी इसमें मैम। जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो जस्ट फॉर 1 आवर एज एज टोल्ड बाय यू, ऐसा ही है ना? Yeah, 1 आवर की जी हिस्ट्री है मैम। जिसमें जी उसको मैम। सडन स्वेयर एब्डोमिनल पेन हो रही है और उसको टेकिकार्डिया भी है, ज़ाहिर है वो पेन की वजह से है। जी और उसको नॉसिया वॉमिटिंग तो शायद नहीं है, लेकिन टेंडर गार्डिंग वो पॉजिटिव है, विच जी रिवील्स पेरिटोनियल इरिटेशन। तो जी उसमें आप विल यू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर लेप्रोटमी सर्जरी बाय वॉट एवर रूट, मैम इस या फिर मैम उसमें इसकी आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाए MRI और फर्दर? डू यू रियली नीड इट? अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाते हैं तो उसको वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो हमें बता नहीं देता, डिफ्रेंशिएशन है। और सिमिलरली यही हमें से नज़र आएंगे उस पे अल्ट्रासाउंड पे भी, MRI पे भी। यस मैम, ठीक है, लेकिन एक वो हो हाँ जाएगा जी। ना patient। मैम इसमें हम ये कर सकते हैं that we admit the patient in high dependency unit and keep her इसमें active with बेसिकली IV हमने fluids यहीं and से हमने analgesics. शुरू करना है कि आपने काउंसलिंग कर दी पेरेंट्स की, पेशेंट की भी, और फिर आप उसके बाद डेफिनेटली पेशेंट इज एन एक्यूट इमरजेंसी तो आप उसको एडमिट डेफिनेटली करोगे। एडमिट करने के बाद आपने उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करनी है, जी क्योंकि मैम। अगर ये फर्ज किया हेमरेजिक सिस्ट भी है या ये टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट भी है, तो फिर ऐसी सूरत में हमने उसको इनिशियली पहले स्टेबलाइज करना होता है, एंड वी हैव टू सी एंड वी हैव टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये ओवेरियन टॉर्शन है तो बाज दफा वो ओवेरियन टॉर्शन डी टॉर्शन भी हो जाती है अक्सर। तो उसमें यू विल स्पेंड सम टाइम इन दैट अनलेस के उसकी पेन सेटल ना हो या किसी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से मैनेज ना हो रही हो, जो कि हमें 1 आध घंटे में बाय द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर लेप्रोटमी तो उसमें हमें पता चल जाता है, एंड देन यू फाइनली डिसाइड फॉर द लेप्रोटमी। अब क्योंकि पेशेंट इज 18 ईयर्स ओल्ड और अनमेरिड है और इसमें इसके साथ वो आई, लेकिन अगर एक्यूट एब्डोमेन सेटल नहीं होता, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का जिक्र जरूर करें इस कंडीशन के साथ कि यू विल कीप हर रेडी फॉर एनी इमरजेंसी लेप्रोटमी इन केस द कंडीशन डजंट सेटल और वर्सन्स फर्दर। ठीक है, जी मैम। क्योंकि इसमें बाज दफा हम रप्चर का भी सोच सकते हैं, स्लो रप्चर भी हो सकता है, इसमें उसका एक्यूट नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और डेफिनेटली हमने ओवेरियन नेक्रोसिस से भी बचाना होता है। इफ इट इज हेमरेजिक तो हेमरेज में अमूमन जो है, अब उसमें जो अल्ट्रासाउंड है उस पे आप एक और फीचर ऐड कर लें कि इसमें माइल्ड जो है वो फ्लूइड है इन द पाउच ऑफ डगलस। आप कह सकते हैं कि 100 ml तक उसका फ्लूइड है इन द पाउच ऑफ डगलस। तो ऐसी सूरत में फिर आपको इसमें ये सारी सिचुएशन के साथ इसको चलना होगा। नाउ सपोज द कंडीशन डजंट सेटल और आपने उसकी अब लेप्रोटमी डिसाइड की, what will be your surgical considerations in this patient in view of her age या अनमेरिड है ये पेशेंट है, और सपोज दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्यूट सिचुएशन? मैम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से ही करेंगे। मैम ठीक है, फैसिलिटीज आर लेप्रोस्कोपिक इज वन थिंग। अवेलेबल, फिर लेप्रोस्कोपी करेंगे, डिटॉर्जन करेंगे और सिस्टेक्टोमी करेंगे और ट्राई टू हम्म प्रिजर्व फर्टिलिटी एज हम्म पॉसिबल। मैम हम्म उसमें हम पेशेंट को के अटेंडेंट्स को उसके पेरेंट्स को काउंसल करेंगे कि हम लोग जिस टाइम वी विल डू द लेप्रोस्कोपी एंड वी विल look if the ovary is all right, then we will save the हम्म ovary so that the fertility is not affected, but if the हम्म ovary is necrosed then we might have to do the oophorectomy। ये हम उनको प्री काउंसलिंग करेंगे और we will हम्म also look on the other ovary if it's healthy or अब not। अल्ट्रासाउंड फीचर के हिसाब से आपको क्या लगता है, ये आप ओवरी कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम उसमें तो कर सकते हैं क्योंकि अभी मैम डॉपलर फ्लो जो है वो उसके हम्म अंदर है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ हुआ, तो देयर इज अ हाई चांस दैट द ओवरी इज नॉट अफेक्टेड येट। लेकिन मैम हम्म वो
उसमें ये है कि फिर भी हमने प्री काउंसलिंग तो करनी है और उनकी उसकी कंसेंट भी लेनी है, सो दैट ड्यूरिंग द सर्जरी हमें पता है कि हमने काउंसिल किया हुआ है, और अब अगर लोग ठीक नहीं है और नेक्रोज्ड, एंड फॉर दैट वी हैव टू डू ओफरेक्टिवी सो दैट द पेरेंट्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इट कैन बी डन इन द ओटी। तो उसके साथ मैम उनकी काउंसलिंग करके फिर वी विल डू द सर्जरी, और फिर उसकी इम्प्लिकेशंस भी हम उसे अब बताएंगे। ठीक है, मैम ये डिटॉर्जन के बाद हम देखेंगे ना कि मतलब वो अगर तो वायबल है मैं ओवरी इसी तो सवाल प्रिजर्व पे करेंगे। आगे मेरा सवाल यही है कि ये तो अल्ट्रासाउंड पे आपने से आपको पता चला कि डॉपलर फ्लो अभी डिस्टर्ब्ड नहीं है, नॉर्मल डॉपलर है, तो आपने ये किया। बट when you see the situation actually intraoperatively, then how you differentiate? Suppose Doppler flow पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया होगा, क्योंकि डेफिनेटली आफ्टर टॉर्शन वो टिश्यू डीमा होता है, सारी कंजेशन हो जाती है, ओवरी का साइज भी बढ़ जाता है ओवरऑल। और उसमें क्योंकि ये ओवेरियन साइज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सेपरेट सिस्ट या सेपरेट ओवरी आपको विजुलाइज नहीं होती। तो इसमें इंट्राऑपरेटिवली हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ नेक्रोटिक ओवरी एंड अ वायबल ओवरी? इंट्राऑपरेटिवली आप उसको कैसे करते हैं, मतलब व्हाट आर योर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट वाइल डूइंग सर्जरी? लेप्रोस्कोपी डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, और उसकी एक्सपर्टीज हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये दो तीन चीजें हैं जो कि उसमें लिमिटेड होती हैं। सो हम इसमें दोनों रूट कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी प्रेफरेबली, और लेप्रोटमी तो डेफिनेटली ये ज्यादातर एक्सपर्टीज ये अवेलेबल होती हैं। सो how you will differentiate that whether what is the situation of the ovary intraoperatively? मैम उसमें हम ये करेंगे कि पहले जब उसकी डिटॉर्शन करेंगे तो हम कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे कि वो ओवरी जो है वो उसका कलर वापस आ रहा है, जैसे अब वो नेक्रोटिक जो है वो डार्क कलर्ड हो गई है, तो उसमें फिर डिटॉर्शन के बाद हम कुछ टाइम वेट करेंगे कि उसमें फ्लो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितनी देर और वेट करेंगे? मैम ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। इसमें हो जाएगा सही वो कलर जो डार्क कलर हुआ हुआ है, क्या वो पिंक हो जाएगा? आई स्ट्रांगली डाउट इट। मैम ऐसा जो होता है क्या? एक्चुअली ऐसा होता है? नॉन मैम वायबल मैम मैम इसमें जो है ना हेमरेजिक सिस्ट में मैंने भी निकाली थी, उसमें ब्लड था हम्म। ज्यादातर ठीक है। हेमरेजिक में, और और हाँ हाँ। उसमें वो क्लू नहीं मिलता हम्म। उसका, तो हम्म। मतलब कि मुझे देखो जो बेटा, मिली। जब आप देखो हेमरेजिक सिस्ट, ठीक है वो है, हेमरेजिक सिस्ट भी तो टॉर्शन में जा सकती है, क्योंकि कोई जी भी जी। ओवरी जो हैवी होगी और उसके लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होगा तो वो टॉर्शन में तो जा सकती है। हो सकता है ये पहले हेमरेजिक सिस्ट बनी हो और उसके बाद फिर इसकी टॉर्शन हुई हो, देयर आर टॉर्शन में जी जी। पॉसिबिलिटीज। और हम्म। टॉर्शन के बाद तो वैसे ही उसका साइज बढ़ जाता है। तो लेकिन मेरा सवाल जो ये था कि आपने उसको, जो जाहिर है जो ट्विस्टिंग है वो आपको पता चल गया कि ये टॉर्शन ऑफ द सिस्ट है, वॉट एवर इज द टाइप ऑफ सिस्ट। वो सिस्ट कोई भी सिंपल सिस्ट भी हो सकती है, हेमरेजिक भी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपने उसको डिटॉर्शन कर दी, उसके ट्विस्ट को आपने अनडू कर दिया। अब आपने उसका देखना है कलर के कन्वर्ट होता है या नहीं होता, और यूजुअली इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। बताने का मकसद यही है कि उसमें अमूमन 10-15 मिनट में तो रिवाइव नहीं होता, आप आधा घंटा भी देखें तो रिवाइव नहीं होता। जी तो मैम। फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये लाइव ओवरी है या डेड ओवरी है? आई मीन मैम नेक्रोटिक है या सिर्फ इसमें वीनस वैस्कुलर कंजेशन है? मैम जो नॉन वायबल वैस्कुलर पल्सेशन मतलब होगी ओवरी, तो उसमें जो है वो एक तो कलर चेंजेस तो होंगी, इसके साथ ही जो ओवरी है मतलब ऐसे जेलाटिनियस टाइप फीलिंग आएगी और ज्यादा वो फ्राइबल होगी, यस, जबकि जो वायबल ट्राइबल होगी उसमें। होगी, और बेसिकली उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है व्हेन यू टच इट, यानी वो टिश्यू उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई जी टक्कर, उसमें कोई इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं होता। यानी जो एक टिश्यू इंटेग्रिटी वाली चीज है वो उसमें नहीं होती, कलर उसका वही होगा, डार्क ब्लू टू ब्लैक कलर हो ब्लैकिश सकता है। टाइप जी। और जो नेक्रोटिक ओवरी है वो इसी तरह से ब्लैकिश कलर की होगी, और अमूमन जिसमें वीनस कंजेशन है अभी और आर्टीरियल सप्लाई इफेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो उसमें भी इसी तरह का कलर होता है। इवन ट्यूब जो है वो ब्लैक हुई होती है, और उसके साथ साथ क्योंकि ट्यूब का टॉर्शन और ओवेरियन टॉर्शन अलग-अलग भी हो सकते हैं, तो इसमें कलर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम। तो इसमें सवाल ये होता है कि क्या आप हर ब्लैक ओवरी को निकाल दोगे? नहीं,
चाहे उसमें डॉपलर फ्लो अगर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वॉट एवर, उसके साथ आप डॉपलर फ्लो अगर नॉर्मल दे दिया हुआ है तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कि ये ठीक है, तो आप उसको उसको आपके लिए डिसीजन करना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन फर्ज किया ये अगर उसमें कलर चेंज नहीं होता और डॉपलर फ्लो की भी आपको नहीं प्रोवाइड की हुई रिपोर्ट्स, तो भी आप इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे। अगर टिश्यू इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, सिर्फ कलर चेंज है, तो भी आप इसको इसमें जो है वो इसमें इसमें वो करोगे, इसको करोगे। लेकिन अगर वो फ्राइबल हो, अगर वो आपके हाथ लगाने से उसमें डिसइंटीग्रेशन शुरू हो, टिश्यू ब्रेक डाउन शुरू हो जाए, देन इट इज अ डेड ओवरी। फिर आपको उसके लिए एक नेक्रोटिक या गैंग्रीनस टिश्यू को निकालना जरूरी हो जाता है। यस मैम, क्योंकि वो यही है उसमें लिखा हुआ लिटरेचर में, तो यही है कि आप अगर वो ऐसे फ्राइबल नहीं है तो आप सिर्फ कलर ही चेंजेस यस, है तो आप उसको तो डिटॉर सिर्फ करें कलर तो वो बाद चेंजेस के में ऊपर डिसाइड ना करें। वायबल हो जाती है, मतलब बाद में फॉलिकुलर हाँ, बिल्कुल एक्टिविटी आप वायबल उसको हो छोड़ जाती है। दें तो इट हो जाती है। समटाइम्स इट टेक्स वीक्स, और जी उस तरह की डिसकलर्ड ओवरी में भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के काफी चांसेस होते हैं। जी मैम। ठीक है, तो उसमें ये होता है। व्हाट एल्स यू कैन डू एट द टाइम ऑफ सर्जरी? एक तो आपने जो सर्जिकल स्टेप्स हैं, बेसिकली आपने डीटॉर्शन की और उसके बाद आपने देखा कि ठीक है, सब मतलब ठीक है, कलर तो चेंज नहीं हुआ, और इसमें कुछ करने की जरूरत है? तो मैम सिस्टेक्टमी करेंगे उसकी। हाउ यू विल डिफरेंशिएट द cyst from the ovary to preserve the ovarian tissue in such a discolored ovary? आप उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? टिश्यू डिफरेंशिएशन कैसी होगी? क्योंकि ओवरी और सिस्ट का तो स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होगा, कलर भी एक ही जैसा होगा, एंड मिस्टेकनली यू कैन रिमूव द ओवेरियन टिश्यू एंड द पर्पज इज नॉट सर्व्ड। तो फिर आप क्या करेंगी? मैम अगर उसको सिस्ट पे छोड़ देंगे तो दोबारा रिकरेंस हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? सिस्ट तो रिमूव करनी पड़ेगी। तो फिर देखो, इसमें जो है ना, ये एक ग्रे एरिया होता है कि अगर आप उसी टाइम पे निकालते हो तो ड्यू टू टिश्यू डीमा, venous congestion, sometimes you cannot differentiate, sometimes you cannot differentiate between the normal ovarian tissue, जो कि कहीं बेसिस ऑफ द जो है वो उस पे पड़ा होता है, सिस्ट के बेसिस पे। यानी ये बिल्कुल उसके टॉप पे नहीं होगा, सिस्ट की बिल्कुल उसके वॉल के करीब नहीं होगा। सो यू कैन एस्पिरेट द फ्लूइड या ब्लड या जो भी उसमें कलेक्टेड है, सिर्फ उस हद तक करो, बहुत ज्यादा टिश्यू डिसेक्शन ना करो। अब ये जो 7 to 8 सेंटीमीटर की, हेलो वेस्टर्न, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं आऊंगी 11:30 तक। हाँ ठीक है, ये मैंने बता दिया था कल। हाँ ठीक, ओके, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने फिर एस्पिरेट करना है सो दैट द साइज ऑफ द सिस्ट इज रिड्यूस्ड, और बाकी हेमोस्टेसिस वगैरह वो सारा कुछ। फिर उसके बाद आप उसको बेसिकली रिव्यू करते हो, क्योंकि टिश्यू डीमा जब सेटल होता है, विनस कंजेशन जब सेटल होती है, तो उसमें आप उसके बाद फिर आप बेहतर डिसाइड कर सकते हो, मे बी इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन। तो बहुत ज्यादा कॉर्टेक्स को रिमूव करना, क्योंकि इसके फॉलिकल्स अमूमन कॉर्टेक्स पे होते हैं, तो उसमें जो है वो उसको जो प्रिजर्व करना जरूरी होता है। जी मैम। अब ये तो है जो आपने किया एट द टाइम ऑफ सर्जरी। अब नाउ सपोज द पेशेंट की कंडीशन सेटल होती है, वो 3 महीने बाद दोबारा आ जाती है इसी प्रॉब्लम के साथ। फिर एंड दूसरी चीज ये कि प्राइमरी सर्जरी के मौके पे आपने उसको देखना है कॉन्ट्रालैटरल ओवरी और ट्यूब को भी। अब ये पेशेंट आ जाती है 3 महीने के बाद अगेन विद द सेम सिम्टम्स, फिर आप क्या करोगे? जी मारिया, जी मैम। यानी रिकरेंस हो गई अब, मतलब ये है कि रिकरेंस हो गई। मैम सिस्ट दोबारा बन गई है। हाँ, मतलब सिस्ट दोबारा बनी या ना बनी, लेकिन टॉर्शन दोबारा हो गई, क्योंकि प्राइमरी पैथोलॉजी वाज टॉर्शन। जी
मैम इसका ये है कि उसको हम जो सर्जरी प्राइमरी हम कर रहे हैं उसमें हमने देखना ताकि जो लिगामेंट्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा कोई एबनॉर्मलिटी उसमें कोई लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से वो दोबारा उस केस में हम उसकी ओफोरोपेक्सी कर सकते हैं ताकि रिकरेंस ना हो, क्योंकि बाज़ लिगामेंट्स की प्राइमरी सर्जरी के मौके पे ये आप कर देंगे? प्राइमरी सर्जरी के मौके पे आप करेंगे ओवेरियोपेक्सी? ओवेरियोपेक्सी मींस फिक्सेशन ऑफ द ओवरीज, ठीक है? जी जी जी। तो क्या वो प्राइमरी सर्जरी के मौके पे कर देंगे? व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स? मैम इसके ये कि अगर उसकी वजह से फिर वो नेक्स्ट जो रिकरेंस के चांसेस है कम हो जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान लेकिन क्या होगा? एडहेजेंस बन जाएंगे मैम। एडहेजेंस तो ऐसी बात है, फाइब्रोसिस हो जाएगी, एडहेजेंस बनेंगी। हम्म। और क्या ओवेरियोपेक्सी के नतीजे में या उसके बगैर, उसके करने के बाद या उस करने से पहले, ये जो एडहेजन्स की बात आप कर रही हैं? मैम उसके साथ भी हो सकती हैं एडहेजेंस। हम हम्म। ज्यादा हम्म। मैनिपुलेट करें उसके बाद वो कोई मैस बन सकता सो है। शुड इट बी डन एट द प्राइमरी सर्जरी टाइम, या हम इसको देखें, हो सकता है कि रिकरेंस ना हो, रिकरेंस इज नॉट इन 100% ऑफ द केसेस, लेकिन इस अगर हम इसको कर दें अननेसेसरीली विदाउट अ जी सर्टेन इंडिकेशन, तो इसके जी नुकसानात क्या हो सकते हैं? मैडम इसके नुकसान जो है वो अगर इसके डिपेंड करता है कि ओफ्रेक्टमी को हमने कहाँ पे जो है ना इसको किया है। अगर इसको ओफरेक्टमी की पोस्टीरियर, हम बात नहीं कर रहे बेटा, हम नहीं नहीं ओवेरियोपेक्सी की ओफ्रेक्टमी, या ओफो, जी जी हाँ। जी जी मैं उसी की बात कर रही हूँ। हम्म। मैडम हाँ। अगर उसको जो है वो हम अगर लेटरल बॉर्डर अगर हम पोस्टीरियरली उसको अटैच करते हैं यूट्रस के साथ तो वो डिस्प्रूनिया काज कर सकती है। और अगर हम उसको लेटरल उसके लेटरल पेल्विक वॉल के साथ अगर अटैच कर देते हैं तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बन जाता है जब यूट्रस, तो फिर उसके साथ एडिशंस होंगी तो वो हम्म। पेन काज तो करेगी। हम बेसिकली अभी तक वी हैव येट टू रीच एट अ कंक्लूजन कि हमने इसको फिक्स किस स्ट्रक्चर के साथ करना है, क्योंकि जिस भी स्ट्रक्चर के साथ करेंगे उसके अपने कुछ नुकसानात होते हैं। तो जी इसलिए हम इसको एज एन इनिशियल सर्जरी नहीं करते, बल्कि अब इसमें डेफिनेटली रिकरेंस रिस्क जो है वो इसमें नहीं, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि हो। देखो, प्राइमरी पैथोलॉजी वाज ओवेरियन सिस्ट, जिसकी वजह से टॉर्शन होगी, क्योंकि जब भी ओवरी हैवी होगी या उसमें कोई मैस होगा जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़ा ना हो, तो उसमें टॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि पीसीओ वाली ओवरीज में भी ये हो सकता है। और अलबत्ता उन पेशेंट्स में रिकरेंस रिस्क ज्यादा होती है जिनमें प्राइमरी पैथोलॉजी ये ना हो, यानी बगैर किसी पैथोलॉजी के, बगैर किसी सिस्ट के उसमें टॉर्शन हो जाती हो, जिसका मतलब ये है कि उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स ऐसे हैं विच प्री डिस्पोजेस फॉर द ओवेरियन टॉर्शन। तो ये जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं ये तो वहीं रहेंगे, वो तो नहीं खत्म हो रहे। अगर एक कॉज है ओवेरियन सिस्ट है तो हम उसको तो रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय डूइंग सिस्टेक्टमी और एस्पिरेशन, लेकिन अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं तो वो जब तक करेक्ट नहीं होते वो उसमें रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल ओवरी के साथ टॉर्शन होती है उसमें अप टू 60% चांसेस होते हैं कि उसमें टॉर्शन के रिकरेंस हो जाए। तो इसलिए उसमें फिर हमें जरूरी होता है टू फोकस ऑन द एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स जो भी उसमें हो सकते हैं। और एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में जो ज्यादा कॉमन रीजन होती है वो है डिफेक्ट्स इन द लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की लेंथ पे, लेंथ उसकी मोबिलिटी पे। और इसलिए जो है वो उसको फिर हमें लिगामेंट्स को फोकस करना पड़ता है, और लिगामेंट्स पे फोकस करना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू फिक्सिंग द ओवरी। लेकिन अगर बार बार रिकरेंस हो रही हो तो फिर ओवरी को फिक्स करते हैं। लेकिन जब हम ओवरी को फिक्स करते हैं तो हम उसकी एनाटमी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इसमें उसको, क्योंकि चाहे हम पेल्विक साइड वॉल के साथ करें, चाहे हम इसको पोस्टीरियर यूट्राइन सरफेस के साथ करें, चाहे हम इसको राउंड लिगामेंट के साथ करें, चाहे हम इसको यूट्रोसेक्रल लिगामेंट के साथ करें, हर एक जगह पे उसके कोई ना कोई उसके एक तो हमने एनाटमी डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि नॉर्मली एनाटमी जो होती है वो उस फिलोपियन ट्यूब्स उसके ऊपर होती हैं, उसका फीमरियल एंड ओवरी के ऊपर होता है, और ओवरी जो है वो ऑलमोस्ट इन पोस्टरोलैटरल सिचुएशन में होती है। तो
तो जब हम इसको एक्यूटली पोस्टीरियरली करेंगे तो उसमें उसके अलावा भी जो है उसमें डिस्पेरोनिया तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और लेटरल पेल्विक वॉल में तो हमने फिक्स कर दिया, यानी अब ओवरी हिल नहीं सकती वहां से, तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये वो इश्यूज हैं विच नीड अ सीरियस कंसिडरेशन व्हाइल वी आर डूइंग ओवेरियोपेक्सी। तो इसलिए हमें अगर लिगामेंट को हम देखते हैं कि लिगामेंट अगर ज्यादा मतलब मोबाइल है या ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल, तो हम उसकी प्लाइकेशन कर सकते हैं एज वी डू द प्लाइकेशन ऑफ द राउंड लिगामेंट इन बिग साइज फाइब्रॉइड्स, क्योंकि उसमें उसकी स्ट्रेचिंग मुस्तकिल हो के वो लंबा हो जाता है राउंड लिगामेंट, एंड दैट प्री डिस्पोजेस टू द रिट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस। तो वहां पे हम प्लाइकेशन कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। तो इसी तरह से भी यहाँ पे हम ओवेरियन लिगामेंट को भी और इसको इप्सिलैटरल यानी जिस साइड की टोर्शन है उस साइड पे सिर्फ के ओवेरियन लिगामेंट को, या फिर हम जो उसका सस्पेंसरी लिगामेंट है जिसको हम जो है वो जो उसको ओवरी के लेटरल साइड पे होता है उसकी हम प्लाइकेशन कर सकते हैं। तो ये है जो कि इसमें इसका जो मेन है। अब इसमें व्हाट मोर हैज टू बी कंसिडर्ड इन दिस ओवेरियन टॉर्शन में। अब अगर यही पेशेंट जो है वो पोस्ट मीनोपॉजल हो तो सिंपल सोल्यूशन इज डूइंग सेल्फ ओफरेक्टमी। ठीक है। तो अगर फर्ज किया इसमें जो है वो मतलब बेसिकली फैमिली साइज पे भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तो ओवरी डेड है तो फिर वॉट एवर द एज दैट ओवरी हैज टू बी टेकन आउट। लेकिन हम इसीलिए हमेशा इस चीज में बहुत एहतियात करते हैं कि ओवरी को एज इट इज ना निकाल दें, सिर्फ उसका कलर ही देख के ना निकाल दें, और 10-15 मिनट सिर्फ कलर का वेट ना करें। वो तो घंटा भी अब बैठे रहोगे तो कलर उसका चेंज नहीं होगा। सो इट हैज टू बी गिवन सम टाइम, और ये अमूमन ठीक हो भी जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दो, एंटीबायोटिक्स दो, तो ये सेटल हो जाती हैं चीजें। इसमें ये इसमें हमें बहुत ज्यादा इस पे रेडिकल सर्जरीज पे कभी नहीं जाना चाहिए इन यंग एज पेशेंट। अलबत्ता अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीटेड है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में ही हो, और हमें लगता है कि ये बार बार हो रही है, तो देन वी कैन गो फॉर द ओफरेक्टमी सेविंग द ओवरी ऑन द अदर साइड, क्योंकि यंग एज पेशेंट में भी जो है वो उसको हमें देखना पड़ता है ओवेरियन कंजर्वेशन को भी। तो ये तो है जो इससे रिलेटेड है। इसमें मैं थोड़ी सी मैम एक सॉरी क्वेश्चन आपको हाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। हाँ वो एक क्वेश्चन था कि अगर अगर इंट्राऑपरेटिवली हमें ये लग रहा है कि जो सिस्टिक मैस है, फर्ज करें कि वो एडोलेसेंट एज है, तो उसका कोई मेलिग्नेंट मैस हमें लग रहा है, जैसे कोई कोई तो टेराटोमा ये टाइप हमें या कोई और अल्ट्रासाउंड है, पे तो भी तो फिर पता हम चल सकता था। ये हमें अल्ट्रासाउंड पे भी तो पता चल सकता है। जी। लेकिन हाँ मैम अगर कोई मेलिग्नेंट मैस हो तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे अगर देखो, हमें। मेलिग्नेंट मैस में भी अगर अपेरेंटली ऑल ऑफ अ सडन और आपने उसके लिए वो अरेंज नहीं किया हुआ कोई फ्रोजन सेक्शन वाली चीज, तो जी डेफिनेटली अगेन यू हैव टू गो फॉर द कंजर्वेटिव सर्जरी। और जी कंजर्वेटिव सर्जरी में ये है कि सिर्फ उस मैस को निकालें और किसी चीज को ना छेड़ें। और जी अगर वो पेरेंटली, क्योंकि बार दफा हमें लगता है पेरेंटली ये मेलिग्नेंट है, वो निकलता भी नहीं है एक्चुअली ऑन जी। हिस्टोपैथोलॉजी। तो हम्म। इसलिए जो एम है ऑफ सर्जरी वो हमेशा होना चाहिए कंजर्वेटिव इन यंग एज पेशेंट्स। ठीक है। जी तो उसमें भी मैम हम अगर फ्रोजन सेक्शन पे भी अगर देखो, सस्पिशियस मैस फ्रोजन आ जाता है। सेक्शन की आपको जो है फ्रोजन सेक्शन में कर तो सकते हो, फॉल्स पॉजिटिव बहुत होते हैं, फॉल्स जी जी फॉल्स नेगेटिव बल्कि ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फॉल्स जी पॉजिटिव। जी तो मैम। उसमें भी आप आपने पहले से अरेंज किया होगा, तो फिर वो हो सकता है ना, ऑल ऑफ अ सडन कैसे होगा। तो अ, इसलिए जो है वो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जी एक मैडम। मिनट मैं जरा आपके साथ स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। यही ओटी ओ
ये शेयर करो। इसको थोड़ा सा उधर कर दो, फुल स्क्रीन कर दो। शेयर हो रहा है सबके साथ? हाँ जी, सबको नजर आ रहा है? हेलो। Yes, जी ma'am, मैम। visible. हाँ अच्छा, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो ये है जो ओवेरियन लिगामेंट है, यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, ये वाला। और ज्यादातर यही बहुत लंबा होता है, या बिल्कुल समझो कि इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती कि जिसकी वजह से ये टॉर्शन में चला जाता है। तो इस अमूमन ये छोटा सा होता है, ये अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप हिस्टेक्टमी भी करते हैं तो ये ओवेरियन लिगामेंट इतना सा बाज दफा होता है, छोटा सा। बट समटाइम्स इट कैन बी एज लॉन्ग एज अप टू दिस पॉइंट। तो जितना ये लंबा होगा उतना ही इसके टॉर्शन में जाने के या रोटेशन में या इसकी अपनी जो सेल्फ मोबिलिटी या इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ द ओवरी उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, या जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। दिस इज एन अदर सपोर्टिंग लिगामेंट ऑफ द ओवरी, एंड समटाइम्स द प्रॉब्लम लाई इन दिस। अब यहाँ से इसको ओवेरियन वेसल्स जो हैं वो आ रही होती हैं, वेन है, आर्टरी है और लिम्फेटिक्स है। तो जब तो टॉर्शन इतनी अभी टाइट नहीं होती कि उसमें डॉपलर फ्लो इफेक्ट हो, तो सबसे पहले ये ओवेरियन, क्योंकि ये लो प्रेशर वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स भी और वेन्स भी, तो ये दोनों वेसल जो हैं ये टॉर्शन, इनका फ्लो वो डिस्टर्ब होता है। तो इसमें वीनस कंजेशन, वीनस ड्रेनेज यहाँ से नहीं हो रहा होता, लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा होता, हाउ एवर देर इज इंटैक्ट आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। तो इसका साइज बढ़ता जाएगा ड्यू टू वीनस कंजेशन, एंड समटाइम्स इट कैन बी डबल ऑफ द नॉर्मल साइज। तो ये इसका इस तरह से, बट व्हेन इट इज टाइट इनफ तो फिर इसमें ओवेरियन जो आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी है विच इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एओर्टा, दैट इज आल्सो अक्लूडेड। और ये वो वाली पॉइंट होता है जहां पे इसका गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गन। तो ये तो है जो इसके दो लिगामेंट्स हैं। अब ये इसमें देखो, ये नॉर्मल है जो कि इसको इसकी पोजीशन में रख रहा है, इसको एक हैंगिंग किस्म का, क्योंकि ये मोबाइल स्ट्रक्चर होता है, आप आसानी से इसको पकड़ के इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इट इज हैंगिंग बाय द टू लिगामेंट्स। And in this, you can see that this is undue long uterovarian ligament and the infundibulopelvic ligament या जो suspensory ligament है. So there is a high chances कि ये ओवरी घूम घाम के इस तरह से इसमें ये टॉर्शन हो जाए, ट्विस्ट इसमें आ जाए, और बाद दफा 3-4 ट्विस्ट भी हुए थे। कॉमनली देर इज वन ट्विस्ट। तो इसमें ये जो लिगामेंट्स की मोबिलिटी, एक्स्ट्रा मोबिलिटी और लैक्सिटी है, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, और ये हम करेक्ट करते हैं कुछ, मतलब इसमें प्लाइकेशन तो ये है कि इसको इसी तरह से लेके और इसको शॉर्टन कर दो, टाइट कर दो, जैसे हम राउंड लिगामेंट में करते हैं। यहाँ पे हम जो इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट है उसको अमूमन छेड़ा कम जाता है, क्योंकि ये इसमें इसकी वेसल्स है, तो इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। हाउ एवर यू कैन फिक्स इट टू द लैटरल पेल्विक स्ट्रक्चर, ताकि ये बहुत ज्यादा मोबाइल ना रहे। तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा, अमूमन ज्यादा जो मसला होता है ये ओवेरियन लिगामेंट में ही होता है, रादर देन दिस वन, बिकॉज दिस इज अ वेस्कुलर पेडिकल एज वेल, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, तो इसको ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं होता। तो ये है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये डबल ट्विस्ट है, बाज़ाहिर हमें लगता है कि ये बहुत टाइट है, और इसके नतीजे में ये ओवरी की ये सिचुएशन हो गई। हाउएवर द फिलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसा मसला नहीं है। अब ये इसमें इसका ये बहुत ज्यादा कोई हमें फ्राइबल या उस तरह से नहीं लग रही,
सो हम इसको डी ट्विस्ट करके, डी टॉर्शन इसकी करके, तो वी विल लीव इट एज सच। और अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कैप्सूल में इंसिजन देके तो इसके अंदर जो जमा ब्लड है वो सारा हम निकाल दें, और हो सकता है कि सिर्फ खाली ओवरी ही हो जो कि एनलार्ज हो गई वीनस कंजेशन के नतीजे में। अब ये भी अगर आप देखें तो ये फिलोपियन ट्यूब ये इस तरह से हो गई, और इसके अलावा ये ओवरी की भी ये सिचुएशन है, बट स्टिल इट कैन बी सेव्ड। और इसी तरह से ये भी है, इसमें तो बहुत क्लियर है कि इसमें फिलोपियन, इसमें जो है इसका फिम्बरी लेंथ तो इस तरह से एडिमेटस है, बट इट डजंट मीन दैट दिस एडनेक्सा शुड बी टेकन आउट, दिस शुड बी सेव्ड, क्योंकि इसमें फिलोपियन ट्यूब जो है वो उसका कलर और उसका टारगेट सीम्स टू बी इंटैक्ट, और इसी तरह से ओवरी भी है। तो ये सारा कलर जो है कि चाहे ब्लैकिश हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये सारा कलर ठीक हो जाएगा। और ये अगर आप देखें तो इसमें तो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकती सेव, बट स्टिल इट कैन बी सेव्ड। तो इसमें ये जो ओवेरियन सिचुएशन है, इसमें अगर हम देखें तो ठीक है, ब्लैकिश या ब्लूइश जरूर है, लेकिन ये अदरवाइज उस तरह से नेक्रोटिक नहीं है। अलबत्ता इसमें प्राइमरीली जो ट्विस्ट लगता है वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही लगता है, लेकिन इसमें भी हम इसको थोड़ा सा एस्पिरेट करके तो इसको छोड़ सकते हैं एज सच। अब इसमें जो ओवेरियोपेक्सी वाली चीज है उसमें अब ये जो है लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, इफ इट इज लॉन्ग नॉट अदरवाइज, तो अगर तो ये लंबा है तो फिर इसको हम इधर से लेके इसको राउंड लिगामेंट के साथ टाई करते हैं, कीपिंग इट इन इट्स पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। सबसे जरूरी चीज जो सर्जरी में होती है वो ये होती है कि आप एनाटमी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, ओवरी की अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन है अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली फिलोपियन ट्यूब का भी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, एंड देयर मे बी डिले इन द कंसेप्शंस एंड द डिफिकल्टी इन इट। तो इसमें फिलोपियन ट्यूब के नीचे से आप स्टिच ला के, और ये स्टिच जो है ये डिलेड एब्सॉर्बेबल होना चाहिए, ज्यादातर बारीक प्रोलीन या वाइक्रोलियम पीडीएस वगैरह ये हम यूज करते हैं इसके लिए। अब जहां पे पोस्टीरियर फिक्सेशन की बात है, पोस्टीरियर फिक्सेशन में हम इसको यहां से लाते हैं, पहले तो उसको फिक्स किया, फिर उसके बाद इसके एक हिस्से को यूट्रस के पीछे हमने अटैच कर दिया, but now we are totally disturbing the position of the ovary and in relation with that the position of the fallopian tube। तो ये डिस्पेरोनिया भी करेगी क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस है। अब इसमें इसको डिस्पेरोनिया ये तब करेगी व्हेन इट इज क्वाइट लो नियर द पाउच ऑफ डगलस। अगर हम इसको तकरीबन फंडस के पीछे यहाँ पे करके पोस्टीरियर सरफेस पे, ये तो एंटीरियर सरफेस है ना, तो पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे करते हैं तो डिस्पेरोनिया तो नहीं होगा, लेकिन इसमें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो कंसेप्शन में मसला कर सकती है। हाउएवर अगर दूसरी तरफ की ट्यूब और ओवरी ठीक है, क्योंकि मसला ज्यादा तब होता है जब बायलैटरल ये प्रॉब्लम हो तो, लेकिन अगर ये यूनिलैटरल है और बार बार रिकर हो रही है तो देन वी कैन गो फॉर दिस। सो द प्रेफरेबल वुड बी दिस वन व्हेन देयर इज ओवेरियन लिगामेंट लेंथनिंग। लेकिन अगर ओवेरियन लिगामेंट लेंथनिंग ना हो तो ऐसी सूरत में फिर हम इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, यानी नियर टू द ओवरी जाके एक स्टिच लिया, फिलोपियन ट्यूब के नीचे से गुजारा, राउंड लिगामेंट के नीचे से गुजार के इसको टाइट कर दिया, और डायरेक्टली हम ओवेरियन कॉर्टेक्स को पोस्टीरियर यूट्राइन सरफेस के साथ लेके जाते हैं। तो इसमें अगर यूट्रस एनलार्ज भी हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो ओवरी इसके साथ ही ऊपर जा रही है, वो कहीं पे फिक्स हमने नहीं कर दी एक्सेप्ट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस। अब जब हम इसको लेटरली करते हैं, ये तो खैर ऐसी ड्रैगमेटिक बनी हुई है ना, लेकिन अदरवाइज हम इसको फिक्स ऐसे जगह पे करते हैं जहां पे हमने देखना होता है यूरेटर्स हैं, वेसल्स हैं, वो सारी चीजें ना हों, और इसी तरह से हम या तो बारीक प्रोलीन 30 प्रोलीन के साथ या फिर पीडीएस के साथ इसके कॉर्टेक्स के सरफेस से, मीजोवेरियम से हमेशा बचना होता है क्योंकि उसी के अंदर सारा न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है,
तो पेरिटोनियम को हमने थोड़ा सा उसका एक फोल्ड रेस करके उसमें से स्टिच लिया और इसकी कॉर्टेक्स में से एक स्टिच लेके फिर हम उसको टाई कर देते हैं। एक स्टिच से भी टाई हो सकता है और इसमें ज्यादा सपोर्ट होती है अगर हम 2 स्टिच के साथ टाई कर दें तो। अब इसमें हम यूजुअली जो है वो इसको डिस्पेरूनिया नहीं कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें मसला ये होगा कि जब यूट्रस एनलार्ज होके एब्डोमेन में जाएगी तो ये ओवरी कैसे मूव करेगी, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अलबत्ता ये चीज हम ओवेरियोपेक्सी टू द लेटरल पेल्विक वॉल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमने कोई रेडिएशन देनी हो या कुछ और ऐसा करना हो जिसमें हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो वहां पे ये नियर टू द लेटरल पेल्विक वॉल ये प्रिजर्व हो जाती हैं, उनका रेडिएशन एक्सपोजर कम हो जाता है। तो ये थी जो मैंने कुछ 2-4 तस्वीरें आपको दिखानी थी ताकि ये आपको थोड़ा सा नो हाउ हो कि इसमें एक्चुअली हमने सर्जिकल जो है करने ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं ऐसे केसेस में जो रिकर कर रही हों, लेकिन इसको प्राइमरी सर्जरी के साथ कंबाइन ना करें अनलेस कि आपको लगे कि इसमें कोई और पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ ये ओवरी का साइज ही बढ़ा हुआ है और इसमें वेरियन लिगामेंट जो है वो दैट इज अनड्यूली लॉन्ग एनाटॉमिकल उसमें कुछ है उसकी कंजेंटल एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, तो ऐसी सूरत में आप उसकी अप्लाइकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए वरना फिर हम इसको स्टॉप करें। मैम एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मैम, अगर प्रेगनेंसी के साथ अगर टॉर्जन हो जाती है तो फिर किसके हम साथ? कैसे, अगर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी भी के है। साथ तो उसमें जी तो आपने सिर्फ उसकी डिटॉर्शन ही करनी है और तो कुछ नहीं करना। जी ठीक है, कि जाहिर है उसमें प्रेगनेंसी के साथ भी उसकी मोबिलिटी तो बहुत बढ़ जाती है, फिर उसमें जी जाहिर है जो सारे सब जो टिश्यूज की कंजेशन है, ब्लड सप्लाई इतना बढ़ा हुआ होता है यूट्रस का, तो कंजेशन होने के चांसेस तो होते ही हैं। और ओवेरी जो प्रेगनेंसी है वो एक ऐसी हाई रिस्क सिचुएशन है जिसमें ओवेरियन टॉर्शन हो सकती है, तो उसमें सिर्फ डिटॉर्शन करें और कुछ ना करें जी फॉर द टाइम। जी मैम, मुझे अगर ये प्रेगनेंसी सिस्ट है, इफेक्ट हो सकती है उससे फिर हम। नहीं नहीं, देखो हमने उसको डिटॉर्शन कर दी ना, और प्रेगनेंसी का जी हम डिपेंड करता है कि कौन से उसमें हुआ, और ज्यादातर प्रेगनेंसी के शुरू में ही ये टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हेन द यूट्रस इज एनलार्ज इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड तो इसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं, लेकिन जब हम इसको डिटॉर्शन करते हैं वो सर्वाइव मतलब वाइबल ओवरी है तो वो अपना काम जारी रखती है, बट फॉर दैट टाइम पीरियड वी कैन गिव सम सपोर्टिव थेरेपी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस वगैरह। जी ठीक है जी मैम, थैंक यू, जी, हेलो थैंक यू मैम। और अस्सलाम कुछ? वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, हाँ जी। मैम को से इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक परमिशन लेनी थी, क्या नेक्स्ट वीक मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकती हूँ आपकी क्लास में? एक मेल बेटा इनफर्टिलिटी का मुझे तो केस इस है। पे जो मर्जी करेगी तो आपकी अपनी फ्री चॉइस होती है, लेकिन आपने इमरान साहब को मेरा ख्याल है इन लाइन रखना होता है, जी जी, वो उनके उनसे साथ पूछना आपने। था तो वो पूछते हैं, आप एक दफा मैडम से पूछ लीजिएगा क्योंकि काफी नहीं, सारे कैंडिडेट। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो अब आप में से जो भी कोई प्रेजेंट करता है वो जी मैं तो शायद जानती भी नहीं होती किसी को कि कहाँ से कौन है और क्या है, वो तो जो भी कोई करना चाहे एवरीवन इज वेलकम्ड। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ना क्या चाहती हो, क्योंकि फिर मुझे खुद अपने ऑन पे टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जी मैम, नेक्स्ट टाइम मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल केस है। एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट्स थी, फीमेल थी, उसके हस्बैंड थे, मेल इनफर्टिलिटी का केस था। हम्म। प्रैक्टिकली मैंने उनको देखा था, उनको असेस किया था, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक अ, है। मैं ओवरलाइन आपको जस्ट इतना बता देती हूँ कि फीमेल वाज नॉर्मल, बट जो हस्बैंड हम्म। था उनकी रैपिड लीनियर यानी जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी थी वो कम्प्लीटली 0% थी। ओके, और उनका लेकिन फर्स्ट काउंट ठीक था? काउंट बिल्कुल ठीक था मैम, वॉल्यूम ठीक था, काउंट ठीक था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। जस्ट हम्म। एक फैक्टर जो था वो भी ओवरऑल मोटिलिटी वाज नॉर्मल, बट द प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाज 0%। और 2 ओके। रिपोर्ट्स उन्होंने रिपीट करवाई थी उनकी, हम्म। 1 मंथ के गैप से ही करवाई थी, एक आगा खान के लैब से करवाई थी और एक मैंने यहाँ ही कराची पे ऑस्ट्रेलियन इनफर्टिलिटी सेंटर से भी उनका स्पेशली रिपीट करवाया था, क्योंकि हम्म। उनका एक बेबी बॉय था 7 इयर्स बैक और वो चाह रहे थे, बाकायदा एंशियस थे काफ़ी कि हमें एक और बेबी कंसीव होना। तो हम्म। फर्स्ट बेबी तो स्पॉन्टेनियसली वो बता रहे थे कि हमें फर्स्ट मंथ में ही कंसीव हो गया था।
और ओके उसके बाद जो उनकी वाइफ थी वो FCPS की कैंडिडेट थी, गायनी में ही कर रही थी, तो उन्होंने 5 इयर्स जो है वो अपनी प्रेगनेंसी डिले की थी IUCD रखवा के। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग एंड एग्जाम जो भी होता है पार्ट 2 का, तो 6 इयर्स के बाद जब वो चाह रहे थे तो उन्होंने अपना वर्कअप स्टार्ट करवाया, क्योंकि वो खुद भी गायनाकोलॉजिस्ट थी। तो एकदम से ये रिपोर्ट सामने आ गई तो वो थोड़े से शॉक में थे। अब दे ओके वर नॉट विलिंग, जाहिर है कोई भी बंदा नहीं चाहता कि हम एकदम से IVF या ICSI की तरफ जाएं। तो वो लोग चाह रहे ठीक थे है कि हम अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो या ऐसी कोई एडवाइस हो जो आप हमें बता सकें, हम हमारी मोटिलिटी इम्प्रूव हो सके, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। तो मैं चाह रही थी कि वो केस में आपसे डिस्कस करूं बाकायदा। ठीक है ठीक है ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम मेनोपॉज और HRT में जी मैम मेनोपॉज और HRT को भी डिस्कस कर रहे हैं। मेनोपॉज और HRT। ठीक है। मीनोपॉज में तो मेरा नहीं ख्याल कुछ इतनी बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी चीजें हैं। व्हाट यू वांट टू डिस्कस इन मीनोपॉज मैम स्पेसिफिक? HRT HRT हाँ HRT ठीक है, HRT तो है ना एक। जी। ठीक है। HRT में आपको चैलेंजेस किस में होते हैं? टू डिसाइड व्हाट टू यू चूज इन HRT, ये वाला मसला है, या टाइप ऑफ HRT? मैम डिसीजन मेकिंग में कि कौन सी HRT देंगे पेशेंट्स को, अगर एज और फर्ज करें उसको कोई इंड्यूस मेनोपॉज है, उस लिहाज जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या इस ठीक है, तरह के, तो डिफरेंट उसमें डिफरेंट कैसे सिनेरियोज के डिसाइड हिसाब से। डिसीजन। जी मैम। ठीक है चलें, ठीक है चलें, ओके, अल्लाह ओके हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।